Start business laws, SOGA Unit 3, that is transfer of ownership and delivery of goods. So here's a unit overview, that is a contract of sale of goods involves transfer of ownership in 3 stages: passing of property, delivery of goods, and passing of risk. Introduction is there. So before this, let us have a look at the notes. Transfer of ownership and delivery of goods. First of all, the introduction, then importance of time of transfer, then passing of property, the rules regarding transfer, that is true rules there are there, identification of goods, then intention of the parties, and then passing of property, the primary rule is specific or ascertained goods, that is section 19. Then in this we have in a deliverable state, section 20, to be put in a deliverable state, and that is section 21, and in a deliverable state where seller has to ascertain price, section 22, and passing of unascertained goods we have section 18, sale by description and appropriation, and its essentials are also there, section 23 clause 1, then delivery of goods to the carrier, section 23 clause 2, then goods sent on approval or on sale or return basis, section 24 we have when goods when does proper passes. Okay, so 3 points are there. Then second is sale for cash only or return basis. Then we have transfer of property in case of reservation of right of disposal, that is section 25, that is circumstances under which right of disposal is deemed exercised. Risk prima facie passes with the property, section 26 says that risk follows property. Whoever has the property will have the risk. Okay, apart from that we have rules explained, then subject to 2 qualifications. 2 qualifications are default in delivery and duties and liabilities as bailey. Then transfer of title by non-owner, sale by person not the owner, section 27, and exceptions, there are 8 exceptions, that is sale by a mercantile agent, sale by one of the joint owners, that is section 28, then sale by person in possession under voidable contract, section 29, sale by one who has already sold the goods but continues possession, section 30 clause 1, sale by buyer obtaining possession before the purpose property on the goods has vested to him, section 30 clause 7, effect of estoppel if sale by an unpaid seller, that's section 54, sale under the provision of the other act, 3 points are there. Then rules regarding delivery, section 33 to 41, 13 rules are there. Acceptance of delivery of goods, section 42, and there are some more. Buyer not bound to return goods, rejected goods, section 43, and liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods, section 44. Now before moving to it, let us see what is the passing of property, section 19. So passing of property is what? It is the transfer of ownership, that is property determines legal rights and liabilities. Property passes to the buyer when the goods are specified, ascertained, and the parties intend to it to be transferred. यानी कि प्रॉपर्टी पास तब करता है सेक्शन 19 के अनुसार जब उसका जो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यानी प्रॉपर्टी वो है लीगल राइट्स और लाइबिलिटीज़ को डिटरमाइन करता है और प्रॉपर्टी पास करता है बायर को जब गुड्स आर स्पेसिफिक एंड असर्टेंड एंड द पार्टीज इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर्ड, यानी वो लोग ऐसा इंटेंशन लाते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना चाहिए. द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर. जब वो चाहेंगे, जब वो ऐसा इंटेंशन देंगे, तब वो पार्टी का ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉपर्टी का. देन सेक्शन 19 क्लॉज 2, हाउ टू असर्टन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, यानी कैसे हम लोग असर्टन करें इंटेंशन ऑफ द पार्टीज. ट्रिपल सी वी हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट, conduct or circumstances. First is to the terms of the contract, second to the conduct of the parties, to the circumstances of the case. To the terms of the contract, to the conduct of the parties, and to the circumstances of the case. Section 20 कहता है specific goods in deliverable state. So property passes when the contract is made if the goods are in deliverable state. Goods अगर deliverable state में है तो property उसी समय पास कर जाता है जब वो सेल होता है. Section 21 specific goods to be put in a deliverable state. कोई specific good है उसमें उसको deliverable state में लाने के लिए उसमें कुछ चीज़ करना पड़ता है. Property passes only when the goods are put in a deliverable state and the buyer is notified. उसको notification मिलता है buyer को seller के द्वारा कि हाँ आपका ये सब चीज़ हो चुका है, अब आप ले जा सकते हैं. Section 22 कहता है goods in deliverable state but seller is to a certain price, यानी कि उसको प्राइस पूछ के बताना है कितना रुपये का आपका जो सामान है उसको बता देगा तो वो बेच देगा. Property passes after the seller takes actions like weighing or measuring to ascertain the price and the buyer is notified. Notification देना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हमारे पास आता है Section 18 and Section 18
एंड 23 का क्लॉज 1 एंड 2 जो कि अनअसर्टेंड गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन. अनअसर्टेंड गुड्स को हम लोग अप्रोप्रिएट करेंगे, अप्रोप्रिएशन करके असर्टेन बनाएंगे तो हम लोग को बोलेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स. नाउ ओवर हियर दिस थिंग इज बीन divided into 4 parts. If you can see the book, passing of property, specific or ascertained goods, then passing of unascertained goods, then goods sent on approval or on sale or return, transfer of property in case of reservation of right of disposal. Now let us see it over here. Section 18 provides that where there is a contract of sale for unascertained goods, the property in goods cannot pass to the buyer unless and until the goods are ascertained. The buyer can get the ownership right on the goods only when the goods are specific and ascertained. What is appropriation of goods? Section 23 clause 1. Appropriation of goods involves selection of goods with the intention of using them in performance of the contract and with the mutual consent of the seller and the buyer. So appropriation of goods involves selection of goods with the intention of using them in performance of the contract and with the mutual consent of the seller and the buyer. Essentials are there: unascertained or future goods, sale by description or quality stated in the contract, deliverable state, then unconditionally appropriated, and appropriation with assent with like the seller and the buyer. Then express or implied are there. Then before or after approval, appropriation, before and after of appropriation, and the mnemonic trick is UDDU AEB. Section 23 clause 2 is the delivery of the goods to the carrier. That is, it is deemed appropriation of goods. When you deliver your goods to the carrier of the buyer, you deem it to be, that is appropriation. The goods has been appropriated. Where in the pursuance of the contract, the seller delivers the goods to the buyer or to a carrier or other bailee, whether named by the buyer or not. Buyer की तरफ से भेजा गया आदमी for the purpose of transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal. Right of disposal नहीं reserve करता है. He is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract. It is unconditional appropriation. Now over here we have section 24, that is goods sent on approval or on sale or return basis में property passes when the buyer approves or keeps the goods beyond a reasonable time. यानी कि प्रॉपर्टी पास कर जाता है जब बायर अप्रूव करता है या तो रख लेता है गुड्स को बियॉन्ड अ रीजनेबल टाइम. सो इट सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस और डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन. यानी कि वो अपना सिग्निफाई करता अप्रूवल या फिर एक्सेप्टेंस कि हाँ हम रख लिए हैं, अडॉप्ट कर लिया ट्रांजैक्शन. सेकेंड है कि इफ़ ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस बट रिटेन्स गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस और रिजेक्शन. यानी कि ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, वो रख लेता है सामान को, रिजेक्शन का नोटिस नहीं देता बट वो रख लेता है. सी है इफ़ ही डज समथिंग टू गुड्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू द गुड्स. देखो आपने कुछ ऐसा काम किया जो ऐसा फील हो रहा है कि आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया. फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स को प्लेज कर दिया तो आपने गुड्स को सेल कर दिया है, लाइक दैट. नाउ सेक्शन 25 इज रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल. सेलर प्रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सिक्योर दैट द प्राइस इज पेड बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर. यानी कि ये जो सेलर है ना वो प्रिजर्व कर लेता है राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सिक्योर द प्राइस इज पेड. यानी सिक्योर करने के लिए प्राइस इज पेड जो कि पहले दिया जाएगा, प्रॉपर्टी बाद में ट्रांसफर होगा. सेक्शन 25 है सर्कमस्टांसेस अंडर विच द राइट ऑफ डिस्पोजल में बी रिजर्व्ड विच इज प्रिज्यूम्ड. सो सेक्शन 25 क्लॉज 2 इज that is conditionally appropriated. If the goods are shipped or delivered to a railway administration for a carriage and by the bill of lading or railway receipt, as the case may be, the goods are delivered to the order of the seller or his agent, then the seller will be prima facie deemed to have reserved the right of disposal. Section 25 clause 3, where the seller draws a bill on the buyer for the price and sends to him the bill of exchange together with the bill of lading or, as the case may be, the railway receipt to secure acceptance or payment thereof, the buyer must return the bill of lading if he does not accept or pay the bill, and if he wrongfully retains the bill or lading or the railway receipt, the property in the goods does not pass to him. अगर वो मतलब fraudulently अगर रख लेता है तो भी goods property does not pass to him. Now over here let us read what all these things are. So sale of goods involves transfer of ownership, risk prima facie passes with the property. If goods are
If goods are lost or damaged, the burden of loss will be borne by owners of the goods. If goods are damaged by third party, it is the owner who can take action. Passing of property, section 18 to 26. Passing of property implies passing of ownership. If the property has passed to buyer, risk in the goods sold is that of the buyer and that not the seller, though the goods may still be in the seller's possession. Rules regarding the transfer of property depends on two basic factors, that is section 8, identification of good, and 19 clause 1, intention of the parties. Unascertained goods, property cannot pass to the buyer unless and until the goods are ascertained, and the buyer can get ownership right on the goods only when goods are specific and ascertained. So okay, 19.1, intention of the parties, property is transferred at such time as the parties to the contract intended to be transferred. For ascertaining the intention, regard shall be given to triple C, the terms of the contract, the conduct of the parties, and the circumstances of the case. So triple C are there. Then we have primary rules. Primary rules for passing of property, that is we have told you that is there are four, that is PUAR. So property, that is a specific or ascertained goods, passes when intended to pass. Okay, section 19, property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to contract intended to be transferred. Intention is what? Three C's, that is to the terms of the contract, to the conduct of the parties, and to the circumstances of the case. So property is transferred, section 19, and 19 clause 1 same. Stages of goods while passing of a specific goods when it is in a deliverable state, section 20, when the contract is made and it is immaterial of payment or time of delivery, only condition is goods must be ready for delivery, means property passes immediately, it is unconditional. To be put into a deliverable state, section 21, where the seller is bound to do something to goods, property doesn't pass until such thing is done, the buyer has notice thereof. Okay, so property will pass after notice given by the seller to the buyer. Okay, when the seller gives a notice to the buyer, means basically acknowledgement, that is called it now notice. So then thereafter only the delivery is said to be completed. Third is in a deliverable state but the seller has to do anything to a certain price, section 22, where the seller is bound to weigh, measure, test some other act or thing to a certain price, property does not pass until such act or thing is done and buyer has notice thereof. So buyer should also get the notice that what he is doing, यानी कि necessary amount वो सब देता है, notice देता है seller to buyer. Okay, now over here we have possession is not equal to ownership. Okay, possession is not equal to ownership. प्रॉपर्टी का जो रिस्क होता है, प्रॉपर्टी अगर खोया या तो कुछ हुआ तो उसका रिस्क होता है वो ओनर के पास होता है ओनरशिप में, बट पोसेशन में ना आपके पास सिर्फ पोसेशन होता है. लाइक सेलर ने जो है वो गाड़ी अपना ना किसी को भेजा है. ओके, सो दे हैव डन द कॉन्ट्रैक्ट और उसने पैसा भी दे दिया, बट जो सेलर है दैट हैज़ केप्ट द कार इन द गराज for safety purposes, but ownership has been transferred to the buyer. Now he is just acting as a bailey because he is having the possession of the car. यानी कि ordinary prudence में जो जैसा देखभाल वो कर सकता है वो करेगा, और अगर उस गाड़ी को कुछ हो जाता है तो buyer's risk is primary and unconditional. So the buyer is at risk. And transfer, when does it transfer? So it depends on the type of transaction and depend between the contract parties, like delivery and or payment, like when delivery passes, when payment is made thereafter. Now over here it is given the four things of these things, the passing of property, the rules which I told you one by one. So what it is, the primary rules for passing of the property which I said, PUAR, that is property that is specific or ascertained goods passes when intent to pass, section 19. Unascertained goods, that is section 18 and 23 clause 1 and 2 are there. Then goods sent on approval or sale or return, 24. Then reservation of right of disposal, that is 25, to secure price before passing of property. And over here section 19, 20, 21 and 22 are there. So in a deliverable state, to be put in a deliverable state, and in a deliverable state, but price you have to ascertain. Now over here we have, this is the part A, that is property specific or ascertained goods passes when intent to pass, section 19, 20, 21 and 22. Now part B is unascertained goods, that is section 18 and 23. So no property in goods is transferred to buyer unless and until the goods are ascertained. Following are the rules of passing of property of unascertained goods. Now over here, the sale of unascertained goods by description. So sale of unascertained goods by description and appropriation, section 23 clause 1. By
description and appropriation. Appropriation means selection of goods, which I told you. Appropriation involves selection of goods with the intention of using them in the performance of contract with the mutual consent of seller and buyer. The essentials are: there is a contract of sale of unascertained or future goods. Goods should conform to the description and quality stated in the contract. Goods must be in a deliverable state, and goods must be unconditionally appropriated with no right of disposal to the contract either by delivery to the buyer or his agent or the courier. Now fifth is appropriation must be made by the seller to the courier, must be made by the seller with assent of buyer and or buyer with assent of seller. यानी कि appropriation must be made by seller with assent of the buyer or buyer with assent of seller. Assent may be express or implied. Assent may be given either before or after appropriation. So these are the essentials of appropriation and description if you are selling goods. So appropriation involves what? Selection of goods with the intention of using them in the performance of contract with the mutual consent of seller and buyer. Essentials that I have told you. Now over here we have section 23 clause 2, that is, this was 23 clause 1, this was 23 clause 1. 23 clause 2 कहता है delivery of the goods to the courier, where seller delivers the goods to buyer or courier or bailey for transmission to buyer and doesn't reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract. यानी कि unconditional appropriation हो जाता है, does not reserve the right of disposal, no condition of payment, यानी कि liability of losses with buyer. Section 23 clause 2. हम लोग बोलते हैं right of disposal क्या होता है. So the seller retains control or ownership of the goods even though the goods may have been delivered to the buyer or a courier until certain conditions are fulfilled, usually payment. यानी payment अगर हो जाएगा तो right of disposal वो ट्रांसफर कर देता है. क्यों? इसका पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द सेलर स्पेशली व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन क्रेडिट. अगर क्रेडिट पे उधार पे सामान बेचा है तो उस सेलर को बचाने के लिए, और सेलर वांट्स टू इंश्योर पेमेंट बिफोर ओनरशिप पासेस, यानी कि सेलर इंश्योर करना चाहता है कि पेमेंट जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले उसको मिल जाए पेमेंट. नाउ पार्ट सी इज देयर, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. 24 सेक्शन 24, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, दैट इज प्रॉपर्टी देयरइन पासेस. ए, व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस or does any other act adopting the transaction. So he does any other act adopting the transaction. If he signifies his approval or acceptance but retains the goods without giving notice of rejection, then if that time he has been fixed for return on the expiration of such time, and if no time has been fixed on the expiration of a reasonable time, or C is there. So basically when like goods he retains without giving notice, two things are there within reasonable period of time, like you have decided already that after 2 months if you don't return my goods I will consider that you have purchased it, you have accepted the delivery. Second is that कि expiry of the period हो गया, यानी कि मैंने पहले से बोल दिया था वो तो हो गया ना, एक्सपायरी ऑफ पीरियड हो गया. लाइक एक्सपायरी ऑफ पीरियड वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि 2 मंथ्स के बाद अगर नहीं आपने कुछ बोला नोटिस वगैरह तो आई विल कंसिडर दैट आई हैव सोल्ड माई गुड्स टू यू. ठीक है. बट सेकंड इज दैट कि रीजनेबल पीरियड एक होता है. रीजनेबल पीरियड एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस क्या बोलता है, आपने कोई सामान लिया है तो वो आप कितने दिनों पर लौटाओगे. जैसे कि आपने कोई वेजिटेबल या फ्रूट लिया तो इट इज़ लाइक बेसिक कि आप उसे 1 या 2 दिन में ही लौटाओगे अगर आपको नहीं चाहिए तो. बट इफ़ यू आर कीपिंग दैट टिल 1 week and it has been expired, it has been like full of fungus and all kinds of molds and all, then are you like out of your mind, like you will return that kind of food to the vendor. It is not good. So reasonable time, that is it. Okay. उसके बाद C है हमारा, he does something to goods which is equivalent to accepting the goods. Like for example, if I sold you a shirt, okay, and I told you that is I have given you, it is goods is sent on approval or on sale or return basis. If you like it you keep it, if you don't like it then return it and within reasonable time. Okay. Now there we went on a wedding, okay, and I met you wearing that same shirt, okay, which I sold you yesterday. So I will consider that you have purchased it, you have like accepted it. But what will happen if I didn't see you? That is something other part. Okay. So basically you do something which makes it obvious that you have actually accepted the delivery. Okay. So basically that is not like wearing the same shirt. I am talking about like pledging the goods or like selling that good to someone else. So if he is what? Buyer. He does to goods something to goods which is equivalent to accepting the goods, like buyer under the contract of sale or return is deemed to have exercised his option when he does any act exercising domination over the goods. Failure or inability to return the goods to seller does not necessarily imply selection to buy. Okay. So basically you pledge or resale things. Okay. Now over here let me tell you one more
टाइम कि गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस में सेक्शन 24 है, इस पार्ट सी है, पार्ट सी सेक्शन का नहीं, पार्ट सी इस पूरे वो का है जो ABC जो है, आई विल टेल यू स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स है, पासिंग ऑफ ऑन सर्टेन गुड्स है, ये पार्ट सी है कि गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ओके, पार्ट डी भी आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन और राइट ऑफ डिस्पोजल। इसमें क्या होता है कि व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, प्रॉपर्टी तो देयर इन पासेस, प्रॉपर्टी पास हो जाता है, बट कब? जब वो सिग्निफाई करता है हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस और डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। इफ ही सिग्निफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस but retains the goods without giving notice of rejection, then if time has been fixed for return on the expiration of such time, and if no time has been fixed on the expiration of a reasonable time, or he does something to the goods which is equivalent to accepting the goods, buyer under the contract of sale or return is deemed to have exercised his option। यानी कि 3 चीज़ हो सकता है, या तो वो सिग्निफाई करेगा, तो वो बताएगा कि मैंने आपका जो सामान है वो रख लिया, मैंने आपका सामान रख लिया, मैं पैसा दे दूंगी। ओके, सेकंड इज क्या कि वो रख लेता है विदाउट गिविंग नोटिस और रीजनेबल टाइम, या तो एक्सपायरी ऑफ पीरियड हो जाता है तब भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है। बट अगर वो कुछ कर जाता है वैसा, या तो वो प्लेज कर देता है गुड्स को, या तो रीसेल कर देता है, तब भी वो माना जाता है कि वो गुड्स को डिलीवर वो है एक्सेप्ट कर लिया है, कि गुड्स सेंट ऑन वो डिलीवर्ड हो जाता है, दैट इज प्रॉपर्टी देयर इन पासेस इज डीम्ड। ओके, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, यानी कि सेल कर रहे हैं बट आप सिर्फ हमको कैश दीजिए या तो रिटर्न कर दीजिए। ओके, सो वेयर गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय अ पर्सन ऑन सेल और रिटर्न ऑन द टर्म्स दैट गुड्स वर टू रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर टिल दे आर पेड फॉर, प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू बायर अंटिल द टर्म्स आर कंप्लाइड विद वाइल विद इन कैश इज पेड फॉर। यानी कि थर्ड पार्टी को बोला हमने कि ये ले लो, बट पेमेंट के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ओके, सो अगर वो जो आदमी है वो अगर बेच भी देता है वो, तो दैट इज नॉट लाइक द बायर विल नॉट गेट अ बोनाफाइड टाइटल। ओके, दैट इज द थिंग। अब आता है हमारे पास पार्ट डी जो कि है सेक्शन 25, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि सिंपल शब्दों में टू सिक्योर प्राइस बिफोर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि कंडीशनल अप्रोप्रिएशन है कि रिजर्व्स राइट ऑफ डिस्पोजल कंडीशन ऑफ पेमेंट, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक लाइबिलिटी, तब तक जो है वो डिलीवरी ट्रांसफर नहीं होगी, यानी लाइबिलिटी ऑफ लॉस विल बी विद द सेलर। ओके, नाउ ओवर हियर वी हैव इन सच अ सेल और स्पेसिफिक गुड्स और अप्रोप्रिएशन, seller may by terms of the contract reserve the right of disposal of the goods until certain condition have been fulfilled. In such a case property will not pass till the condition imposed by the seller has been fulfilled। यानी कि जो कंडीशन वो लगाया है सेलर बायर पे, वो अगर फुलफिल नहीं होगा तो प्रॉपर्टी तब तक नहीं पास होगा। सर्कमस्टांसेस क्या है अंडर विच द राइट ऑफ डिस्पोजल मे बी रिजर्व्ड, प्रिज्यूम किया जाता है ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज एंड बाय बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट द गुड्स आर डिलीवरेबल टू ऑर्डर ऑफ द सेलर और एजेंट, देन द सेलर विल बी प्राइमा फेसी डीम्ड टू हैव रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल। यानी कि सेक्शन 25 क्लॉज 2 बोलता है कि अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वगैरह मिला है कुछ, तो गुड्स अगर शिप किए गए, डिलीवर किए हुए हैं, रेलवे रिसिप्ट, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से, कैरेज से, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, रेलवे रिसिप्ट कुछ दिया गया है, डिलीवर टू ऑर्डर ऑफ द सेलर एजेंट को दिया गया है, तो ये प्राइमा फेसी डीम्ड है कि सेलर विल बी प्राइमा फेसी डीम्ड टू हैव रिजर्व्ड, वो रिजर्व किया राइट ऑफ डिस्पोजल। सेक्शन 25 क्लॉज 3 है, अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के साथ जोड़ करके देते हो, वे जो सेलर है वो ड्रॉज अ बिल ऑन बायर फॉर प्राइस एंड सेंड्स टू हिम बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट to secure acceptance or payment, buyer must return the bill of lading if he does not accept or pay the bill। यानी कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, कि वो नहीं कर देगा, तो वो जो है वो बिल ऑफ लेडिंग वो वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। इफ रॉन्गफुली रिटर्न्स द बिल ऑफ लेडिंग, अगर वो गलत से फ्रॉडलेंटली अगर रख लेता है बिल ऑफ लेडिंग को और द रेलवे रिसिप्ट, प्रॉपर्टी उसके पास नहीं पास होता है। नाउ ओवर हियर इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट टू ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स इन सेलर्स नेम। सेकंड, इंस्ट्रक्शंस टू withhold documents until payment आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को, इंस्ट्रक्शंस को withhold करो डॉक्यूमेंट्स को। यूज ऑफ बैंकिंग चैनल्स, यानी कि एग्जाम्पल थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ फर्स्ट इज कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल लाइक बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिप्ट वगैरह आप दे रहे हो, दैट इज ऑन सेलर्स नेम और हिज ऑर्डर। सेकेंड इज इसी में बिल ऑफ लेडिंग एंड रेलवे रिसिप्ट में ऑन द बायर्स नेम ऑफ हिज ऑर्डर, यानी कि बायर का नेम ऑफ हिज ऑर्डर। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल विद बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा, दैट इज सेलर होल्ड्स द ओनरशिप अंटिल बायर ईदर मेक्स पेमेंट और एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि सेलर जो है वो ओनरशिप को होल्ड करेगा जब तक बायर या तो पेमेंट करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा इंस्ट्रूमेंट को। ओके, दिस इज द थिंग। उसके बाद सेक्शन 26 बोलता है कि रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, यानी कि रिस्क जो है जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, हम लोग बोले थे पोसेशन एंड ओनरशिप आर टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन प्रॉपर्टी इज ओनली द ओनरशिप।
प्रॉपर्टी ही ओनरशिप होता है. सो प्रॉपर्टी जो है रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी. सो गुड्स रिमेन एट सेलर्स रिस्क अंटिल प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द बायर, यानी कि गुड्स रिमेन करता है सेलर का ही रिस्क अंटिल प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है बायर को, अनलेस अदरवाइज अग्रीड. ओके, बट इफ ट्रांसफर टू बायर गुड्स आर एट बायर्स रिस्क वेदर डिलीवरी मेड और नॉट, यानी कि अगर गुड्स जो है वो ट्रांसफर किए जा चुके हैं बायर को तो वो बायर का रिस्क है, या तो डिलीवरी हुआ है या तो नहीं हुआ है तो भी. सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर. इट इज एसेंशियल टू डिलीवर, यानी कि कब means the time when the ownership passes from the seller to the buyer. Section 26 है risk prima facie passes with the property. Risk follows ownership subject to the agreement between the parties. There they may agree to contrary. They may agree to contrary means risk will transfer sometime. Risk will transfer. What is it? Subject to the agreement between the parties. They may agree to contrary means risk will transfer sometime after or before the property has passed. यानी कि जो रिस्क है वो कब ट्रांसफर होगा, प्रॉपर्टी पास होने के बाद, पहले थोड़ा या बाद में. यानी कि इफ़ आपने कोई कार सेल की है, डिसाइडेड इन द अग्रीमेंट कि हमने जो है ये वाला आपको इस दिन को देना है. ओके, इफ यू हैव डिसाइडेड. अगर बायर ही डिफॉल्ट कर देता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सेक्शन 26 का एक्सेप्शन है कि वेयर डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज़ बीन डीलेड ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ ईदर बायर या सेलर, या तो बायर या सेलर कोई डिफॉल्ट कर देता है तो द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट, यानी कि जिसके कारण देर हुआ वो गलती है, वो लायबल है, वो सारा खर्चा करेगा और जो लॉस होगा वो भी भरपाई करेगा. एज रिगार्ड्स एनी लॉस विच माइट नॉट हैव अकर्ड बट फॉर सच फॉल्ट, यानी कि रिस्क अगर पहले ट्रांसफर हुआ, रिस्क बाद में ट्रांसफर हुआ, ओनरशिप से पहले रिस्क ट्रांसफर था, ओनरशिप से पहले क्या रिस्क ट्रांसफर था, हो गया, अगर हो गया तो. सेलर है 100 कॉटन बेल्स था, 50 और 50. सबसे पहले तो 50 वो भेज दिया, 50 वो ऑलरेडी भेज दिया फैक्ट्री में, यानी 50 बेल्स आर डिलीवर्ड. रेस्ट बोला कि आपने जो 50 है वो मैं बाद में कलेक्ट कर लूँगा. लेकिन वो जब फैक्ट्री में रखा हुआ था तो बारिश हुआ और सारा का सारा कॉटन जो है वो ख़राब हो गया. बायर डिफ़ॉल्ट पे है, बायर डिफ़ॉल्ट किया तो वो फॉल्ट पे है, तो वो लायबल है इस 50 बेल्स के लिए. रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन हुआ, ये रिस्क प्राइमा फेसी पासेस का एक्सेप्शन हुआ. रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी सेक्शन 26 का एक्सेप्शन हुआ ये कि वो कॉटन बेल्स को नहीं लिया, उसका गलती था, उसका डिफॉल्ट था, तो फेसी है कि पासेस विद द प्रॉपर्टी, रिस्क ऑलरेडी पास्ड. सो ये जो है बायर वो डिफॉल्ट में है. यहीं पे लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन टू द रूल दैट रिस्क फॉलोज ओनरशिप, सेक्शन 26 का ही एक्सेप्शन है कि वेयर डिलीवरी बीन डीलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ ईदर बायर और सेलर, गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ पार्टी इन फॉल्ट फॉर एनी लॉस विच माइट नॉट हैव अकर्ड बट फॉर द फॉल्ट, यानी कि जिसका गलती था वो भरपाई करेगा. तो ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर और बायर एज बेली फॉर द अदर पार्टी रिमेन्स अनअफेक्टेड, यानी कि वो तो बेली का ना काम कर रहा है, अगर वो पोसेशन उसके पास सिर्फ जो सेलर है, अब उसके पास सिर्फ पोसेशन है ना कि ओनरशिप है. नाउ सेक्शन 27 से 30 है ट्रांसफर ऑफ द टाइटल बाय नॉन ओनर्स. जनरल रूल ये है कि सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू बायर देन ही हिमसेल्फ हैज, यानी कि सेलर जो है ना वो ट्रांसफर नहीं कर सकता बेटर टाइटल टू बायर जो कि उसके पास खुद है. अगर सेलर ही नहीं ओनर है तो बायर कैसे ओनर हो जाएगा? बायर ऑल्सो विल नॉट बिकम द ओनर, लाइक टाइटल ऑफ बायर शैल बी सेम एज ऑफ द सेलर. लैटिन में मैक्सिम है नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट विच मीन्स दैट नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट, यानी कि जो आपके पास ही नहीं है आप वो कैसे दे देंगे? सेलर जिस चीज का, लाइक आई एम सेलिंग यू दिस पेन, ओके, इफ आई एम सेलिंग यू दिस पेन एंड आई एम नॉट द ओनली ओनर, लाइक आई हैव जस्ट लाइक स्टोलन, लाइक आई जस्ट stole it from somewhere and I am just selling you, so I am not a seller, I am not like this rule applies. Okay, Latin maxim ki nemo dat quod non habet, like no one can give what he has not got, I have not got this, so how can I give you this pen? Okay, that is the thing. एक्सेप्शन है इसका प्रोवाइजो टू सेक्शन 27, ये प्रोवाइजो है, लाइक ये सब एक्सेप्शंस. ओके, एक्सेप्शंस है कि नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर ऑफ गुड्स फॉर द वैल्यू, लेकिन जनरल रूल तो ये है ना कि एक जो नॉन सेलर है वो सेल नहीं कर सकता है, वो एक अच्छा बेटर टाइटल नहीं ट्रांसफर कर सकता है. सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू बायर देन ही हिमसेल्फ हैज. इफ द सेलर इज नॉट द ओनर, बायर विल ऑल्सो नॉट बिकम द ओनर. Nemo dat quod non habet, which means no one can give what he has not got. Exceptions: non-owner can convey better title to the bona fide purchaser of goods for value. First is sale by a mercantile agent. Second है sale by one of the joint owners, यानी कि अगर mercantile agent सेल कर रहा है या फिर अगर कोई joint owners, one of the joint owners अगर सेल कर रहा है. Sale by a person in possession under voidable contract, अगर voidable contract के अंदर कुछ है और वो आदमी सेल कर रहा है. Sale by one who has already sold the goods but continues in possession thereof,
ऑफ, यानी कि अगर वो पहले से ही सेल कर चुका है बट जो है वो फिर से उस पर्टिकुलर सेल किए हुए सामान को बेच रहा है, तो सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोसेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन, यानी कि सेल कर रहा है बायर जो कि ऑब्टेन करा पोसेशन पहले ही, जब प्रॉपर्टी उसको मिल चुका है तभी वो बेच रहा है। इफेक्ट ऑफ एस्टोपेल, एस्टोपेल मीन्स टू शो, लाइक आई एम शोइंग कि ये जो आदमी है, ये जो है, ये जो गुड है ना, ये मेरा है, आई एम शोइंग, बट ये मेरा नहीं, ये उसका है। तो मैं अगर शो कर रही हूँ ना, तो वो जो रियल ओनर है ना, वो अब बाद में कुछ नहीं कर सकता, तो दैट इज इफेक्ट ऑफ एस्टोपेल। और सेल बाय एन अनपेड सेलर और सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट। अब देखो इसका ट्रिक है MJPSBEUP, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट M, sale by one of the joint owners J, sale by a person in possession under the voidable contract P, S है sale by one who has already sold the goods but continues in possession thereof, okay। B है हमारा सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोसेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम, ओके। ई है हमारा इफेक्ट ऑफ एस्टोपेल, यू है हमारा सेल ऑफ एन अनपेड सेल ऑफ बाय एन अनपेड सेलर, और पी है हमारा सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट्स, ओके। फर्स्ट है मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, इट वुड पास अ गुड टाइटल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इफ ही वाज इन पोसेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, इफ सेल वाज मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ मर्केंटाइल एजेंट, एंड इफ बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ एंड हैज at the time of contract of sale no notice of the fact that the seller has had no authority to sell, यानी कि अगर बायर गुड फेथ में काम करता है और उसके पास कोई तरीके का नोटिस नहीं था कि वो जो सेलर है उसके पास एक्चुअली अथॉरिटी टू सेल नहीं है, पोसेशन ऑफ गुड्स है, इफ ही वॉज लाइक इट वुड पास अ गुड टाइटल सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, अगर उसके पास पोसेशन ऑफ गुड्स है या तो डॉक्यूमेंट्स है कंसेंट ऑफ द ओनर का, अगर सेल किया गया है व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड मर्केंटाइल एजेंट, एंड इफ द बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ, बायर एक्टिंग किया है गुड फेथ में, अगर उसके पास कोई भी नोटिस नहीं ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल, तब वो गुड टाइटल, बोनाफाइड टाइटल पास करेगा, दैट इज सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। उसके बाद है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, दैट इज सेक्शन 28, यानी कि इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ गुड्स हैज सोल पोसेशन ऑफ द गुड्स बाय परमिशन ऑफ द को-ओनर्स के परमिशन से अगर आप कोई सामान बेच रहे हो, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन हु बाइज, अगर वो गुड फेथ में लेता है, उसके पास कोई नोटिस नहीं है दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। थर्ड है कि सेल बाय अ पर्सन इन पोसेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, जो कफ एमएम से इन्फ्लुएंस होता है, लाइक कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ओके। मिस्टेक तो खैर वॉइड और वैलिड दोनों हो जाता है, लाइक वॉइडेबल भी होता है, ओके। सो सेक्शन 29 है कि पोसेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में सेल बाय अ पर्सन कैसे होता है, बायर वुड अक्वायर अ गुड टाइटल प्रोवाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन री-रिसाइंडेड अंटिल द टाइम ऑफ द सेल, यानी कि बायर एक गुड टाइटल अक्वायर करेगा प्रोवाइडेड क्या कि द कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन री-रिसाइंडेड, दोबारा नहीं कैंसिल किया गया अंटिल द टाइम ऑफ द सेल, दैट इज थर्ड पार्टी को गुड टाइटल मिलेगा। सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन द पोसेशन देयर ऑफ, या लाइक जो सामान, लाइक आई हैव परचेज दिस पेंसिल फ्रॉम अ शॉप, ओके, एंड आई हैव केप्ट इट ऑन द टेबल कि मैं एक दूसरी चीज़ देख रही हूँ कि मुझे और क्या लेना है, उसी समय एक और बायर आ जाता है और वो बोलता है मुझे ये पेंसिल दे दो, और जो सेलर है ना वो इस पेंसिल को बेच देता है, उस ये जो मेरा खरीदा हुआ पेंसिल है, इसका जो पैसा दे चुकी हूँ मैं, इसे बेच देता है वो दोबारा उस आदमी को, और वो मतलब बिका हुआ सामान ना बेच रहा है। सो दिस इज व्हाट सेक्शन 30 क्लॉज 1, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोसेशन देयर ऑफ, बिका हुआ सामान वापस से बेच देना, लाइक इफ सच पर्सन सेल्स देम टू थर्ड पर्सन एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन्स द डिलीवरी इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस, जो बायर है उसको तो कोई नोटिस नहीं ना था, वो तो गुड फेथ में ना, विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल वो काम किया, ही वुड हैव गुड टाइटल टू देम, प्लेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल बाय सेलर इन पोसेशन आर इक्वली वैलिड, यानी कि ये वैलिड होगा। उसके बाद है सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोसेशन बिफोर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम, यानी कि सेल कर रहा है बायर ऑब्टेनिंग पोसेशन बिफोर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम, यानी कि पहले प्रॉपर्टी उसके पास आया भी नहीं तब भी वो बेच दिया। तो सेक्शन 30 क्लॉज 2 में वेयर बायर विद कंसेंट ऑफ सेलर ऑब्टेन्स पोसेशन बिफोर प्रॉपर्टी पास टू हिम, पोसेशन पहले आ गया, प्रॉपर्टी के बाद में ट्रांसफर होगा, पोसेशन पहले आ गया, तो ही में सेल, प्लेज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ गुड्स टू थर्ड पर्सन एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन्स डिलीवरी इन गुड फेथ और कोई नॉलेज नहीं है ऑफ द लियन एंड अदर राइट, ही वुड गेट अ गुड टाइटल टू देम। एक्सेप्शन है इसका 5 का, सेक्शन 30 क्लॉज 2 का एक्सेप्शन है कि हायर परचेज अग्रीमेंट में विच गिव्स ओनली एन ऑप्शन टू बाय अनलेस इट अमाउंट्स टू सेल। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, सबसे पहले इस पॉइंट का मतलब अच्छे तरीके से समझो कि अगर कोई सेलर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लोग हैं, ओके,
यहाँ पर दो लोग हैं, ये है ए और ये है बी, ओके। सो सपोज आई एम गोइंग टू लाइक द सेलर, ही इज़ द सेलर एंड ही हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड इट, ओके, यानी पोसेशन चला गया है बायर के पास। अब ये क्या किया कि ये जो है ये एक नया बायर है और ये जो बायर है ये इस गुड को, इसको प्रॉपर्टी को दे दिया, बेच दिया और ये चला गया, ओके। तो ये कर सकता है, दैट इज़ अगर बायर अगर गुड फेथ में है, नो नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल, नो नोटिस है कि वो अभी तक वो जो है उसके पास तो अभी तक खुद का प्रॉपर्टी तक नहीं आया, फिर भी वो उसको सामान बेचा, तो ये जो है ये गुड टाइटल इसको ट्रांसफ़र होगा। बट इसका एक्सेप्शन क्या है कि कभी कभी जो है ये जो सेलर है, ये जो बायर है, इसको कुछ सामान ना हायर परचेज पे देता है। हायर परचेज इज अ सिस्टम जहाँ पे आप लोग जो है बायर इफ़ यू आर, तो आप क्या करते हो कि पार्ट इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, लाइक इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये 10,000 का है तो 1,000 यू आर गिविंग एवरी मंथ, तो 10 मंथ तक आप दोगे, तब आपको जो लास्ट पेमेंट है ना, जो 1,000 जो लास्ट पेमेंट होगा आपका, तब ये जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये बीच में लाइक 1,000 इसको दिया एक महीने में और ये जो है तभी ये जो है ये अगर ये दूसरे बायर को सेल कर देता है तब नहीं मिलेगा गुड फेथ, ये इसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा, तब ये नहीं खरीद सकता, ओके। सो दिस इज द थिंग बेसिकली कि एक्सेप्शन है कि हायर परचेज अग्रीमेंट विच ओनली गिव्स एन ऑप्शन टू बाय अनलेस इट अमाउंट्स टू सेल। आप बाय करोगे जब तक वो सेल नहीं होगा तब तक, ओके, सेल हो जाएगा तब ओके कर लेना। इफेक्ट ऑफ एस्टोपेल है वेयर ओनर एक्टिवली सफर्ड अदर पर्सन। सो बेसिकली वाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट दिस एक्सेप्शन, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स का एक टॉपिक था और उसके एक्सेप्शंस हम लोग पढ़ रहे थे कि जो कि जनरल रूल तो ये है कि सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू बायर देन ही हिमसेल्फ हैज़, ओके। इफ द सेलर हैज़ नॉट बिकम द ओनर, बायर ऑल्सो विल नॉट बिकम द ओनर। लेकिन अब इसी के एक्सेप्शंस को हम लोग पढ़ रहे थे, इतना सारा जो MJP, SN, BEUP ये सारा हम लोग पढ़ रहे थे, उसी के एक्सेप्शन के अंदर एक एक्सेप्शन है, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हायर परचेज अग्रीमेंट में ना ओनली ऑप्शन रहता है बाय अनलेस इट अमाउंट्स टू सेल। अब इफेक्ट ऑफ एस्टोपेल है हमारे पास, दैट इज व्हाट इट इज कि वेयर ओनर एक्टिवली सफर्ड अदर पर्सन एज ट्रू ओनर, यानी कि वो जो है शो किया ऐसा कि वो जो है वो है असली ओनर, ओके। और ऑथोराइज्ड पर्सन टू सेल इज एस्टोप्ड फ्रॉम डिनाइंग सेलर्स अथॉरिटी, अगर वैसा हो जाता है तो ही इज एस्टोप्ड फ्रॉम डिनाइंग सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। अब वो सेलर्स अथॉरिटी टू सेल जो है वो डिनाई नहीं कर सकता, उसको अब बेचना पड़ेगा और वो कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द ट्रांसफरी विल गेट अ गुड टाइटल एज अगेंस्ट द ट्रू ओनर। सेक्शन 54 क्लॉज 3 है हमारे पास ओवर हियर, सेक्शन 54 क्लॉज 3 है हमारे पास। सेल बाय एन अनपेड सेलर, अगर कोई अनपेड सेलर है, अनपेड सेलर क्या होता है हमने पढ़ा है अनपेड सेलर के बारे में यहाँ पे यूनिट 2 में, इफ यू रिमेंबर, इफ यूनिट 2 में हमने, आई थिंक यूनिट 2 नहीं यूनिट 4 में है शायद, यूनिट 4 में, ओके। अनपेड सेलर जो है वो है कहीं पर, अनपेड सेलर, या दिस इज द यूनिट 4 में अनपेड सेलर बनता है। अनपेड सेलर अगर उसको होली या पार्टली उसको पैसा नहीं मिलता तो वो अनपेड सेलर बन जाता है। तो अगर वो अनपेड सेलर कुछ सामान बेच रहा है, व्हेन एन अनपेड सेलर हु हैड एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज, अच्छा अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट होते हैं, उसके पास होता है राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, देन राइट ऑफ रीसेल, उसके बाद एक और होता है राइट ऑफ लाइक यहाँ पे है सो 3 क्या क्या है, राइट ऑफ अगेंस्ट द गुड्स है, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ओके। उसके बाद राइट ऑफ रीसेल, अगर प्रॉपर्टी पास नहीं किया गया है बायर पर तो विथ होल्डिंग डिलीवरी भी आता है, राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी। और अगेंस्ट द बायर में है सूट फॉर प्राइस एंड सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंटरेस्ट एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच भी, ओके। तो यहाँ पे अनपेड सेलर अगर देगा ये सब, अगर एक्सरसाइज कर चुका है, रीसेल करता है गुड्स को, तो बायर अक्वायर्स अ गुड टाइटल एज अगेंस्ट ओरिजिनल बायर, जो बायर है उसको गुड टाइटल मिलेगा, ओके। जो बायर है ना उसको गुड टाइटल मिलेगा अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, वो तो गुड फेथ में लिया, ओके। उसके बाद हम लोग वहाँ पे अनपेड सेलर में पढ़ते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस रहता है। अगर सेलर जो है वो बता चुका है कि वो सामान अब वो है बेचने वाला है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो उस तरीके का चीज़ है लाइक पेरिशेबल है तो उसको बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो बता देता है
कुछ कुछ चीज़ में बताना पड़ता है, अगर नहीं बताता है तो उसको जो है प्रॉफिट वगैरह जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो नहीं रख पाएगा, और जो एक्स्ट्रा लाइक लॉसेज होगा वो भी रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो पहले से बता देता है तो जो भी प्रॉफिट वगैरह होंगे वो रख सकता है, जितने भी लॉसेज होंगे वो बेयर कर सकता है ओरिजिनल बायर से, ठीक है। तो दैट इज द थिंग वो जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट अनपेड सेलर का आई होप दैट इज क्लियर कि रीसेल द गुड करता है, तो बायर एक्वायर्स अ गुड टाइटल एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, सेल बाय एन ऑफिशियल एज रिसीवर और लिक्विडेटर विल गिव द परचेजर अ वैलिड टाइटल, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फाइंडर ऑफ गुड्स विल गेट अ वैलिड टाइटल, सेल बाय pawnee can convey a good title to the buyer. Now performance of the contract of sale, सेक्शन 31 बोलता है कि ड्यूटीज क्या है सेलर और बायर की। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर to deliver the goods and the buyer to accept and pay for them in accordance with the terms of the contract of the sale. Performance of the contract of sale implies delivery of goods by seller and acceptance of delivery and payment of the price for them by buyer in accordance to the terms of the contract. Definition of delivery, section 2 clause 2. Delivery means voluntary transfer of possession from one person to another. Physical possession is not important. Buyer to be placed in a position that he can exercise his rights over the goods. If possession is taken through unfair means, there is no delivery. Delivery of goods is of three types: actual, symbolic and constructive. Payment and delivery are concurrent condition, यानी they are together. Section 32 बोला seller shall be ready and willing to give possession in exchange of price, and buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange of possession of the goods unless otherwise agreed. Rules regarding delivery of goods section 33 से 41 तक है। डिलीवरी है, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी है, प्लेस फॉर डिलीवरी, टाइम फॉर डिलीवरी, गुड्स इन पोसेशन ऑफ थर्ड पार्टी, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, डिलीवरी टू करियर, डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, और है बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। तो 13 आर देयर। तो डिलीवरी सेक्शन 33, डिलीवरी मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज अग्री और विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोसेशन ऑफ बायर और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बायर। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी सेक्शन 34, डिलीवरी ऑफ पार्ट इन प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ होल हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स, बट डिलीवरी ऑफ पार्ट विद एन इंटेंशन ऑफ सेवरिंग इट फ्रॉम द होल डज नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। यानी कि अगर स्पेसिफाई कर दिया गया है पहले से कि ये जो है ना, ये जो गुड है इसको मैं तोड़ करके पहले आधा पहुंचाऊंगी, उसके बाद 10 दिन बाद आधा पहुंचाऊंगी, अगर इस तरीके से स्पेसिफाइड है देन इट इज़ गुड। अगर लेकिन इस तरह का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, अगर मैं फिर भी इस पेंसिल को जो है तोड़ करके आधा आज पहुंचा रही हूँ 10 दिन बाद पहुंचा रही हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा स्पेसिफाई नहीं होता है तो हमारे जो बायर है उसके पास दो ऑप्शंस रहता है, या तो वो कंसिडर कर लेगा, अगर वो कंसिडर कर लेगा कि वो जो आधा है ये पूरा है तब भी एक्सेप्ट कर लेता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इफ़ नॉट स्पेसिफाइड पार्ट जो है, जो हाफ पार्ट है उसको वो होल डीम कर सकता है, बट इफ स्पेसिफाइड है देन एग्जाम्पल लाइक 50-50 डिलीवर देन ओके। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी सेक्शन 35 में है, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर अंटिल बायर अप्लाइज फॉर इट, यानी कि सेलर बाउंड नहीं है डिलीवर करने के लिए जब तक बायर अप्लाई ना कर दे एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, प्लेस ऑफ डिलीवरी है सेक्शन 36 क्लॉज 1, वेदर इट इज फॉर बायर टू टेक पोसेशन और फॉर सेलर टू सेंड देम टू बायर इन अ क्वेश्चन डिपेंडिंग इन ईच केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और implied. Apart from any such of the contract, goods sold are to be delivered at the place at which they are at the time of the sale, and goods agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are to at the time of the agreement to sell, or if the goods are not existence at the time प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। इसका सिंपल डेफिनेशन है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में प्लेस डिक्लेयर्ड है, डिसाइडेड है, देन इट इज फाइन। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्लेस डिसाइडेड नहीं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 क्लॉज 1, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया गया, दैट इज एट द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे वो बनाया गया, अगर अग्रीमेंट टू सेल है, अग्रीमेंट टू सेल है, तो जो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट में है वो जो एग्जिस्टिंग है वो, या तो अगर जो मैन्युफैक्चरिंग का जो फैक्ट्री जहाँ मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पर वो होगा। ओके, तो एट द टाइम ऑफ द सेल या तो एट द टाइम ऑफ द अग्रीमेंट जहाँ पे हुआ है तो मैन्युफैक्चरिंग या तो मैन्युफैक्चरिंग का प्लेस। टाइम फॉर डिलीवरी सेक्शन 36 क्लॉज 2, वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू बायर बट नो टाइम फॉर सेंडिंग इज फिक्स्ड, सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद इन रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम में भेज दो। गुड्स इन पोसेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी सेक्शन 36 क्लॉज 3, देयर इज नो डिलीवरी अनलेस एंड अंटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। अगर कोई थर्ड पार्टी से डिलीवरी गुड्स का पोसेशन आ रहा है, गुड्स इन पोसेशन ऑफ थर्ड पार्टी अगर है, तो ही शुड एक्नॉलेज द बायर। ओके, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी सेक्शन 36 क्लॉज 4, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है कि डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी मे बी ट्रीटेड एज इनएफेक्चुअल अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आवर। रीजनेबल आवर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ओके, रीजनेबल आवर क्या होना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेवरल अदर पॉइंट्स, दैट इज express for delivery, expenses for delivery. Okay, I'm sorry, expenses for delivery
बाय डिफॉल्ट है एक्सपेंसेस तो सेलर ही लेगा। कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी ये है कि अगर वो जो डिलीवरी के एक्सपेंसेस है बढ़ गया किसी कारण, किसी बायर के डिफॉल्ट की वजह से, देन दैट एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय बायर। द एक्सपेंसेस of and incidental to putting the goods into deliverable state must be borne by the seller in the absence of the contract to the contrary। ओके, contrary यानी कि अगर कोई भी तरीके का डिफॉल्ट अगर कर देता है बायर के वजह से, अगर हो रहा है बायर के वजह से एक्सपेंसेस बढ़ जा रहा है, वो बोल रहा है कि थोड़ा देर रुको मैं थोड़ा बाहर हूँ, 2 दिन बाद लाना, 2 दिन का जो खर्चा है वो बियर करेगा जो बायर है वो। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी सेक्शन 37। ओके, following are the cases subject to any usage of trade, special agreement or course of dealing between the parties. Seller delivers a quantity less than he contracted to sell. Buyer may reject them all, but if buyer accepts the goods so delivered, he shall pay for them at the कॉन्ट्रैक्ट रेट। यानी कि अगर उसको कम क्वांटिटी मिल जाता है, कम क्वांटिटी मिल जाता है और तो उसके पास 2 ऑप्शन आता है, तो वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है सारा का सारा। लेकिन अगर बायर एक्सेप्ट कर देता है तो उसको पे करना रहेगा एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। सेलर डिलीवर्स अ क्वांटिटी लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूड in the contract and reject the rest, and he may reject the whole. If accept the whole of the so delivered, he shall pay for them at the contract rate। यानी कि अगर ज़्यादा मिल जाता है क्वांटिटी, वो मांगा 10, उसको मिला 20, तो उसके पास ऑप्शन क्या है? वो तो सारा एक्सेप्ट कर सकता है, या तो सारा का सारा रिजेक्ट कर सकता है, या तो जितना सारा रिजेक्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट द रेस्ट, यानी कि जो एक्स्ट्रा आया है उसको एक्स्ट्रा को रिजेक्ट कर देगा। बट अगर वो एक्सेप्ट कर देता है सारा का सारा, एक्सेप्ट कर लिया सारा का सारा, तो ही शैल पे एट देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट, यानी कॉन्ट्रैक्ट रेट प्लस मार्केट प्राइस जो भी वट एवर इज देयर। Seller delivers the goods he contracted to sell mixed with goods at a different description not included in the contract. Buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject remaining or may reject the whole। अगर मिक्सचर मिला है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे 10 पेन चाहिए, 10 रेड एंड 10 वाइट। ओके, तो उसने क्या किया, जो लाइक जस्ट से कि रेड पेन मुझे चाहिए था 10 पीस। ओके, बट उसने क्या किया कि मुझे 10 रेड पेन भी दे दिया और 10 वाइट पेन भी, या तो 5 रेड पेन दे दिया, 5 वाइट पेन दे दिया। तो इसमें हमारे पास जो है ये होता है कि अकॉर्डिंगली हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ले सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा आ गया तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं, या तो अगर 5 चाहिए तो 5, उस तरीके से तो वो मिक्सचर हो सकता है। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी सेक्शन 38 में बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इंस्टॉलमेंट अनलेस अदरवाइज अग्रीड। राइट्स, लाइबिलिटीज एंड पेमेंट्स देयरऑन आर डिटरमाइंड बाय द पार्टीज। यानी कि अग्री है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी का, यानी कि पार्ट बाय पार्ट। आज मैं आपको ये पेंसिल भेजूंगा, कल मैं आपको ये पेन भेजूंगा, और परसों ये जो है पेन। ओके, ये पेन। ओके, तो अगर इस तरीके का ये जो है कि ऑलरेडी अग्रीमेंट है, स्पेसिफाइड है, ये चीज़ अग्रीड है, देन इट इज़ फाइन। लेकिन अगर इस तरीके का अग्रीमेंट नहीं बना है, देन जो इंस्टॉलमेंट का है बायर कैन रिजेक्ट इट। ओके, डिलीवरी टू कैरियर सेक्शन 39 क्लॉज 1। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू बायर इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी डिलीवरी टू बायर सब्जेक्ट टू टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये डीम्ड डिलीवरी होता है। ओके, इट इज अनकंडीशनल। डिटेरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट सेक्शन 40 में द लाइबिलिटी फॉर डिटेरियोरेशन नेसेसरली इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट विल फॉल इन ऑन बायर दो सेलर अग्रीज टू डिलीवर एट ओन रिस्क। यानी कि अगर कोई तरीके का डिटेरियोरेशन आ जाता है ड्यूरिंग ट्रांजिट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ऑयल वगैरह आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो थोड़ा बहुत इवेपोरेट हो जाता है, बट इतना नहीं हो जाता। लाइक अगर लाइक जस्ट लाइक 10 to 12 ml जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो दैट विल बी बोर्न बाय द बायर ओनली। ओके, बायर्स। लेकिन अगर वो जो तेल है, ओके, अगर वो पूरा का पूरा 10 लीटर ही खत्म हो जाए तो तब तो वो जो है वो बियर करेगा सेलर। ओके, दिस इज द थिंग डिटेरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट सेक्शन 40। बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स सेक्शन 41। इफ प्रीवियसली नॉट एग्जामिन्ड, बायर इज इंटाइटल्ड टू रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिन गुड्स टू ascertain its conformity with contract. Seller is bound to afford buyer a reasonable opportunity of examination subject to contract. Okay, रूल रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड सेक्शन 42 में एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द बायर वो कर देता है IIR। क्या है ये? इंटीमेट्स कर देता है, इनकंसिस्टेंट काम कर देता है, या तो रिटेन रख लेता है इस सामान को। इंटीमेट्स द सेलर दैट ही हैड एक्सेप्टेड द गुड्स और डज एनी एक्ट टू द गुड्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर और रिटेन्स गुड्स आफ्टर लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट इंटीमेटिंग द सेलर अबाउट रिजेक्शन। ये कहीं ना कहीं सेक्शन 24 जैसा आप लोगों को लग रहा होगा, वही है ये सेक्शन 24 है। ये 24 का सेक्शन हमने पढ़ा था कि 3 चीज़ वो कर सकता है, कि दिस इज द ये चीज़ है कि राइट जो है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, उसी की तरह का लग रहा होगा सेक्शन 24 का। ये 3 चीज़ वो कर सकता है, इंटीमेट कर दे, इनकंसिस्टेंट काम कर दे, वो रख ले। ओके, वो सब चीज़। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स सेक्शन 43 वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड और बायर एंड बायर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम हैविंग राइट टू डू सो, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम to seller unless otherwise agreed, but it is sufficient if he intimates to the seller। अगर वो बता देता है कि मैंने जो है सामान आपको रिजेक्ट करना है, तो अब सेलर का काम है
कि वो अपना आदमी भेजे, वो अपना आदमी भेजे, बेसिकली जो है एजेंट भेजे वो सामान को वापस लेने के लिए। ओके, उसके बाद है सेक्शन 44, लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। व्हेन सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर एंड रिक्वेस्ट्स बायर टू टेक डिलीवरी एंड बायर डजंट विद इन अ रीजनेबल टाइम टेक डिलीवरी, ही इज लायबल टू सेलर फॉर एनी लॉस occasioned by the neglect or refusal to take delivery and also for a reasonable charge for care and custody of goods, provided nothing shall affect rights of seller where the neglect of refusal of buyer amounts to a repudiation of the contract। यानी कि ये लिखा हुआ है प्रोवाइडेड नथिंग शेल अफेक्ट द राइट ऑफ सेलर वेयर द नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ बायर अमाउंट्स टू रिप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सा बात है कि अगर सेलर रेडी है सामान को, लाइक आई एम द सेलर और मैं रेडी हूँ कि देखिए आपका जो पेंसिल है वो बिल्कुल तैयार है, आप डिलीवरी ले लीजिए, अब डिलीवरी ले लीजिए। मैं डिलीवरी देने गई और आपने रिफ्यूज़ कर दिया, रीजनेबल टाइम में बायर ने विद इन रीजनेबल टाइम टेक डिलीवरी, okay, and he is liable to seller, okay, ready and willing to deliver and request buyer to take delivery and buyer doesn't within, वो नहीं लेता है रीजनेबल टाइम टेक द डिलीवरी, उसने नहीं लिया आके ये पेंसिल, ही इज लायबल टू सेलर फॉर द लॉस। अब जो लॉस हुआ इसको यहाँ पर ये जो है इसको इस तरीके से प्लेस पर रखने के लिए जो है मैंने 4 आदमी लगाए, यहाँ पे 2 आदमी, यहाँ पे 2 आदमी, जो कि 10 रुपया पर सेकेंड ले रहा है और ये कम से कम जो है 50 सेकेंड खड़ा रहा है, तो 50 गुना 10 500 500 500 500 लाइक इज 4 5 2000 रुपया मेरा जो एक्स्ट्रा लगा इस पेंसिल को इस तरीके से पकड़ने के लिए, वो जो है अब बायर बियर करेगा। ठीक है, अगर वो सामान ले लेता है बाद में तो he is liable to seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery and also for a reasonable charge। ये जो केयर और कस्टडी में लगा ना, यहाँ पे 2 आदमी को खड़ा करने में, यहाँ पे 2 आदमी को खड़ा करने में जो 500 500 500 500 लगा, उसके लिए भी जो है बायर ही लाइबल है। प्रोवाइडेड नथिंग शैल अफेक्ट द राइट्स ऑफ द सेलर वेयर द नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ बायर, अगर प्रोवाइड ये है कि उससे कोई इस तरीके का अफेक्ट नहीं कर जाता है सेलर का राइट कि पूरी तरीके से जो नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल है बायर का वो पूरी तरीके से रिप्यूडिएट कर दे कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। दिस वाज ऑल द यूनिट 3 एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी एब्सोल्युटली रीडिंग द बुक बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज इट, बाय बाय।